सभी सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, बिकॉज हम खुद भी स्टूडेंट्स थे, और अब हमारे बच्चे आर गोइंग थ्रू सिमिलर फेजेस, and we are all walking tightropes. A very, very good morning to all of you here for another interesting expert speak session by Plan to Win. As all of you might know, and for those of you who are new, this is Plan to Win program has a vision to build this community, which is creating a future of your own choice, where there is ease, there is grace, through creativity, commitment, integrity. It's a life management system giving you not only strategies and techniques, but also the attitude you need to make the most of your precious time. This is a space which will move you towards creating and realizing the goals in your life. Now, how many of your parents here? Yeah, I can see raised hands. And if you're not parents, maybe you have been grandparents, or maybe some of your students. And for many of many of us, it is the exam season. अगर हम parents हैं तो हमारा भी exam season है, and nerves are on the edge. So research backs the view that parental involvement during exam really matters. And while you are maybe an observing parent or an involved parent, you're giving anxious looks and oodles of advice to your teenager, जो रात रात भर जग के bleary eyed है, who may snap at you and irritation. So it's a very tight rope, as far as our involvement during this exam season is concerned. There might be frictions जो कि आपके बच्चे को अफेक्ट करेंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी को ऑन हर स्टडीज। पर आप नहीं इन्वॉल्व हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, आपका मन ही नहीं मानेगा। एज अ पेरेंट ऑफ 2 टीन्स, मेरी 3 बेटियां हैं और 2 टीन्स हैं, तो मैं आई एम ऑलवेज स्ट्राइविंग टू अचीव दैट फाइन बैलेंस। एंड examinations are the hardest times that children face, and parents or grandparents can play a significant role in curbing the stress levels. So once again, welcome to Plan to Win Expert Speak on parenting in the face of examinations. I'm your host and Plan to Win super leader, Gitanjali Kasliwal. We are honored once again to have the very, very popular Mr. Nilesh Surana as a speaker. उनकी डिमांड खत्म ही नहीं होती है, everybody wants him all the time. He has a magic over people, and हम सब उनको जानते हैं. He has been our coach in Landmark also, and is a mentor to so many of us. He has received many awards in training and sales. His company Benchmark Consultancy has been instrumental in providing lean consultancy to more than 100 plus organizations covering various facets like manufacturing industries, hospitals, traders, educational institutions, and different service-oriented industries. He is a powerful life coach and a mentor, having contributed to thousands of people. So welcome, Nilesh ji, and please share with us how we can be effective with our children, how we can nurture the relationships and unleash the hidden talents, ease the exam times for our children and for ourselves. Over to you, Nilesh ji. Thank you, Gitanjali. नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी अभी तक। गुड मॉर्निंग नीलेश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सभी से निवेदन है, प्लीज 1 मिनट रुकते, सब लोगों के वीडियो ऑन होने दीजिए ताकि हम लोग फिर स्टार्ट करें। लेट अस वेट फॉर फ्यू सेकंड ताकि सब लोग वीडियो ऑन कर सकें।
आप सभी से निवेदन है वीडियो ऑन कर लीजिए। आप सब लोग वीडियो ऑन करेंगे तब हम स्टार्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है, दीवारों से बात नहीं कर पाता मैं। मुझे जिंदा इंसानों से ही बात करना अच्छा लगता है, तो आपके जब तक वीडियो ऑन नहीं होंगे हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। शलाका, राजेश कांबळे, एमबी पाटिल, नीलांशु, डॉक्टर कमलेश, आप हम आपकी राह देख रहे हैं। आप वीडियो ऑन करेंगे और फिर हम शुरुआत कर पाएंगे। उज्ज्वला, शिवाली, खुशबू, we will wait for our 30 seconds। अभी शैलेश, शिवा, इन तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची है। हर्षवर्धन, डॉक्टर कमलेश, वीडियो ऑन कर लीजिए आप। गीतांजलि, इनको कोई कॉल कर सकता है? उज्ज्वला, राजेश कांबळे, ताकि वो लोग वीडियो ऑन कर सके। राजकमल श्रीवास्तव, Yes, शिवाली, yes, we खुशबू। do that. Yeah. I would request once again to आप जहाँ पे भी है जैसे भी हैं, it's okay. Please, if you can be on the camera, that be very interactive for our session and for our speaker. Thank you. कैमरा ऑन Like करके कुछ आपका लोगों ने रिक्वेस्ट करी है पर्सनली कि they are in a very odd situation, so they may not be open to, able to open the camera. So maybe we can take that request as per. they can attend next time because उनके बच्चों के लाइफ का सवाल है ना। If they are not able to participate, what's the point? राजकमल, शिवाली, खुशबू, श्वेता, वंदना। We'll wait for few more minutes। मैं जानता हूँ कि जो लोगों ने कैमरे ऑन किए उनके लिए टाइम वेस्ट है, लेकिन ये डिसिप्लिन क्रिएट करना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग एक्चुअली लोगों से बात कर सके। एंड थैंक यू नीलेश भाई, ये बहुत अच्छा आप चीज बता रहे हैं। एंगेजमेंट भी फुली होगा और उनको जो मिलेगा वो भी प्रॉपरली फुल 100% मिलेगा। क्योंकि And I must remind everyone, this session is the only session which is an hour and a half long. We have never done hour and a half long sessions. As you know, it's only 8 to 9. But आज का session जो है वो 8 to 9:30 है, because it is critical. सुनील, वंदना, खुशबू मेहता, शिवाली, we are waiting for you। स्प्राउट स्कूल, राजेश कांबळे। मैं एमबी पाटिल सर माफी चाहता हूँ, सब लोगों के वीडियो ऑन होने में थोड़ा समय लगता है। मैं दिल से माफी चाहता हूँ उज्ज्वला मैडम कि आपको वेट करना पड़ रहा है। और आपका कैमरा सामने प्लेस होना चाहिए, आपका सीलिंग नहीं दिखाई देना चाहिए। कुछ लोगों के सीलिंग दिखाई दे रहे हैं, मकान दिखाई दे रहे हैं, तो हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके सीलिंग के साथ नहीं, मकान के साथ नहीं, दीवारों के साथ नहीं। खुशबू मेहता, राजकमल, वंदना, नीतू डोंगर दवे, सुनील। थैंक यू वंदना फॉर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट। हम आपकी राह देख रहे थे काफी देर से। थैंक यू वेरी मच। We are waiting for Khushbu, Rajkamal, Sunil।
थैंक यू खुशबू, हम आपकी राह देख रहे थे। जब तक सब लोग ऑन नहीं करते हम लोग वेट करेंगे। विल क्रिएट डिसिप्लिन इन दिस कॉल, ताकि लाइफ टाइम ये डिसिप्लिन मेंटेन रहे। राजेश कांबळे, कैन समबडी कॉल राजेश कांबळे या राजकुमार श्रीवास्तव, ताकि वो लोग वीडियो ऑन कर सकें। कुछ लोगों के वीडियो ऑन ऑफ हो रहे हैं। गीतांजलि, वो लोग कर रहे हैं मेरे कहने पे ऑन, फिर 30 सेकंड बाद ऑफ कर देते हैं। स्मार्ट पीपल, फिर उनके बच्चे भी उतने ही स्मार्ट बनते हैं, जैसे हम सुनते नहीं वैसे बच्चे भी नहीं सुनते। फिर मिरर इमेज क्रिएट होता है। So it's 8:11. Still we are waiting for 2 people कि वो वीडियो ऑन करें। राजकुमार श्रीवास्तव, प्राची ओक, we are waiting for you. iPhone, मृणाल पाटिल। So जैसे मैंने आपको वीडियो ऑन करने को कहा, what was your first experience? या मैं चाहता हूँ कि सब लोग शेयर करें, what was your first experience immediately? आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? ओहो, अभी हम प्रेजेंटेबल नहीं है, शक्ल दिखाने लायक नहीं है, बाल एकदम क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीजें कर रहे हैं सुबह सुबह। राइट, मैं जानता हूँ, और यही हमारे को अपने बच्चों से पसंद नहीं है। जब वो पढ़ाई करते करते दूसरी चीजें करते हैं तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन जब हमारे पढ़ाई करने का टाइम आता है तो हम दूसरी चीजें करते हैं। हम 4 काम एक साथ करते हैं ताकि एक भी काम ठीक से नहीं कर पाए। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हम बोलते हैं हमें बच्चों में बहुत इंटरेस्ट है, और हमारे पास 1.5 घंटा नहीं है वो चीज सीखने के लिए जिससे कि उनकी लाइफ अल्टर हो। काफी बड़ा वंडरमेंट है। ओके, और क्या एक्सपीरियंस था आपका? मैंने जैसे ही वीडियो ऑन करने को कहा, आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो, क्योंकि आप शेयर करोगे तब मुझे पता चलेगा कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस। नहीं, as you said, it should be more interactive ना, तो लाइव अगर वीडियो है तो ही बातें कर रहे हैं, एक दूसरे में समझना और शेयर करना इम्पोर्टेंट है। नहीं या तो दोनों से बात करने जैसे लगता है। That's true, I agree with you. राइट। किशोर खासने, दर्शना फड़ाके, अनुषा निकम, आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ है। मैं आज डिसाइड करके आऊँ गीतांजलि, मैं सिर्फ इतना ही ट्रेन करके जाऊंगा कि लोग वीडियो ऑन कर सके। अगर मैं इतना ही कर पाया आज, तो मुझे समझ में आएगा कि अगर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाए तो बच्चे भी फॉलो कर पाएंगे। अगर गणेश पाटिल जी, अगर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते तो बच्चे Yes, कभी sir. भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाएंगे। और हर किसी के पास एक बहुत ही वैलिड रीजन होगा कि उनका कैमरा Yes, sir. क्यों ऑफ रहना चाहिए। थैंक यू किशोर। ओके, गीतांजलि कितनी देर राह देखनी है हमें? अभी भी प्राची हो, राजकुमार। नीलेश भाई, कुछ लोग बाद में ज्वाइन करेंगे, तो एज एन हाउ पीपल ज्वाइन, और मे बी 1 more minute, 8:50। थैंक क्योंकि यू। देखो जितने लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे ना, उसकी वजह से जिन लोगों ने वीडियो ऑन किया उनका समय जा रहा है। खुशबू, मैं माफी चाहता हूँ अगर मैंने सब लोगों के लिए अनकंफर्टेबल क्रिएट किया हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग और कुछ कर रहे होंगे। थैंक यू शिवा। थैंक यू शालिनी वीडियो ऑन करने के लिए फाइनली। थैंक यू शालिनी। Thank you, Nilesh, sir, bring this practice
और अगर ये करेंगे, अगर बिजनेस में इन एवरी एरिया, आई एम 100% श्योर दैट सक्सेस मिलेगा। ओके, ग्रेट। सो आप एडमिन, आप जितने लोगों के वीडियो ऑफ है आप उनको वेटिंग रूम में प्लेस कर सकते हैं, ताकि जितने लोगों के वीडियो ऑन रहेंगे वही लोग इंटेग्रिटी में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमने एक रूल बनाया हमारे लीन मैनेजमेंट में, कोई भी वीडियो ऑफ रखता है हम उनको वेटिंग रूम में रखते हैं, ताकि वो लोग थोड़ा सा अपने आप को प्लेस कर सके, रेडी हो सके और फिर ज्वाइन कर सके। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का भविष्य बच्चों के हाथ में है। अगर हम लोग इस बात पे हमारा कमिटमेंट नहीं लाएंगे तो हम कहीं पे भी कमिटेड नहीं रह सकते। कोई भी दुनिया में यूथ जो होता है या जो चिल्ड्रन होते हैं वो भविष्य का निर्माण करते हैं। जापान इतना प्रगत राष्ट्र है, लेकिन वहां पे भी लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं पता है? वहां हम यूथ कम हो गए हैं। तो आपका कमिटमेंट मेरे कमिटमेंट से 100 गुना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप आपके बच्चों के बारे में बात कर रहे हो। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस तरह से ऑपरेट करें कि ये लाइफ एंड डेथ वाला कॉन्वर्सेशन भी क्रिएट कर सकते हो। इससे आप आपके बच्चों को सेलिब्रिटी भी बना सकते हो या ऑर्डिनरी इंसान भी बना सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझसे बातचीत करें। मैं ये नहीं चाहता कि मैं वन साइडेड बातचीत करूं। अगर मैं वन साइडेड बातचीत करूंगा तो आप लोग बहुत बोर हो जाओगे। यूट्यूब पे ऑलरेडी डॉक्टर कमलेश इतने सारे वीडियो है पेरेंटिंग के कि आपको ये लाइव सेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप, अच्छा वॉइस इंक्रीज करूं मैं? मेरा वॉइस कम है? नहीं, परफेक्ट। ओके ओके, सो आई थिंक जिनको वॉइस कम आ रहा है उनको अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेना चाहिए। सो पॉइंट ये है कि आप, ये पूरा सेशन इंटरेक्टिव होगा। आप इतने सीरियस मत होइए, मैंने सिर्फ वीडियो ऑन करने को कहा है, आपको सीरियस होने को नहीं कहा है। मैंने आपको जो भी परेशान किया होगा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन है कि आप लोग इस प्रोग्राम में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें। स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, मैं ऐसा समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंटिंग अगर ठीक से हो जाए तो लाइफ बहुत ही बल्ले बल्ले है। कुछ लोगों ने अभी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्यों पेरेंटिंग की जरूरत है? हाँ, पहले जरूरत बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले जमाने में ऑलरेडी ऐसे कुछ हमारे कल्चर थे, सिस्टम थे, स्ट्रक्चर थे कि ऑटोमेटिकली पेरेंटिंग बहुत बेहतरीन होता था। अभी के जमाने में डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस कि डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गए? मतलब इंटरप्शन और डिस्ट्रैक्शन, मतलब अगर पिछले 25 साल पहले कितने डिस्ट्रैक्शन होते थे? 25 साल पहले कितने इनकमिंग कॉल आते थे? व्हाट डू यू थिंक? 25 साल पहले कोई इनकमिंग कॉल होता था, कोई डिस्ट्रैक्शन होता था, कोई देयर नो कॉल, राइट? आज अगर आप किसी से मिलेंगे तो आपको कितने इनकमिंग कॉल्स दिखाई देंगे? टू मेनी। कितने लोग आपको लगता है कि कितने लोगों का इनकमिंग कॉल्स भी होगा? कितने लोगों के मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे कितने सारे मैसेजेस आते होंगे? कितने सारे ग्रुप्स होंगे? तो इंटरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन, इंटरप्शन एंड डिस्ट्रैक्शन जो है ना, आज के जमाने में, अभी इस जमाने में ऐसा कहते हैं 80 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। हाउ मेनी टाइम्स? 80 टाइम्स। अभी सोचो, इतने इंटरप्शन में प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना बहुत ही बड़ा कार्य है। मतलब इट्स लाइक एक टास्क जैसा नजर आता है। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो अगर ये टास्क है तो हमें इसको सीखना होगा। खुशबू, पुराने जमाने में लोग नहीं सीखते थे तो भी बहुत बड़े इंसान बन जाते थे। रेशमा, आज के जमाने में आप ऐसा सोच सकते हो क्या, कोई पढ़े नहीं, कोई लिखे नहीं तो भी चलेगा? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि नहीं नहीं चलो बेटा पढ़ाई बिल्कुल मत करो, कुछ भी मत करो, आप अंगूठा छाप रहे तो चलेगा?
हेलो, आप लोग अनम्यूट करके बात कर पाएंगे तो मुझे समझ में आएगा, अदरवाइज Not possible now. नॉट पॉसिबल, राइट। उसी तरह तब पेरेंटिंग की प्रोग्राम की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी बहुत जरूरत है, अभी बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी चैलेंजेस चेंज हो गए। 15 साल पहले, 25 साल पहले जो चैलेंजेस थे वो अभी नहीं है। 25 साल पहले चैलेंजेस अलग थे, 15 साल पहले अलग थे, 5 साल पहले अलग थे। 2030 में चैलेंजेस बहुत अलग रहेंगे। अगर आप देखोगे आने वाले कार्यकाल में तो पूरे चैलेंजेस चेंज हो जाएंगे। अभी ये चैलेंजेस को डील करने के लिए हमें नए लर्निंग की जरूरत है, नए तरीकों की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है। मतलब श्वेता, हमारे वक्त क्या था ये डायलॉग भी हम अभी यूज नहीं कर सकते। हमारे जमाने में ऐसा आप यूज करोगे तो लोगों को असरानी याद आएगा शोले पिक्चर का। तो आप वो डायलॉग अभी आज के जमाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हमारे जमाने में तो ऐसे ही नहीं था, हमारे जमाने में तो वैसा नहीं था। ये ऐसी आउटडेटेड बातचीत अभी आप नहीं कर सकते, ना कोई सुनना चाहता है। मैं सही बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत बात कर रहा हूँ? सही है। राइट, मतलब अच्छा, एक ही जन मुझसे बात करेंगे सुबोध जी, या बाकी के लोग भी बातचीत करते रहेंगे? नीलेश जी, आप तो बच्चों की साइड ले रहे हैं, हमको कुछ बात ही नहीं करने देते। मैं तो बोल रहा हूँ आप बात करो, आप बात नहीं कर रहे हो। अभी मैं गीतांजलि, जितने लोगों का वीडियो ऑफ है ना उनको वेटिंग रूम में प्लेस कर रहा हूँ, ताकि आपके यहाँ एक नया कल्चर लाएंगे। आप डोंट वरी अबाउट द नंबर्स। 10 लोग कम रहेंगे ना तो चलेगा, लेकिन वो पक्के रहेंगे जितने रहेंगे ना। आप अगर ये कल्चर मुझे अलाउ करेंगे आपके प्लान टू विन में, तो आपका प्लान टू विन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो मैं अभी जितने भी लोगों का वीडियो ऑफ है उनको वेटिंग रूम में अभी कुछ देर प्लेस करूंगा, ताकि वो लोग फिर नेक्स्ट टाइम से उसी हिसाब से प्लान करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट कि आप ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट टाइम ये प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। गॉट दैट। सभी का प्लान टू विन है, आपका भी और सभी का प्लान टू विन है, तो प्लीज। राइट, सो मैं जितने भी लोगों का वीडियो ऑफ है उनको अभी वेटिंग रूम में प्लेस कर रहा हूँ। जस्ट होल्ड ऑन फॉर मिनट। थोड़े बहुत रीजंस हो सकते हैं, नेटवर्क इश्यूज वगैरह है, तो उनको एक्सक्लूड कर सकते हो आप। यही तो प्रॉब्लम है ना संजय जी, ये एक्सक्लूजन का इतना खतरनाक बेनिफिट उठाते हैं लोग कि जितने बच्चे नहीं उठाते उतने पेरेंट्स उठाते हैं इसका बेनिफिट। मतलब मैं इस डोमेन को ही खत्म करना चाहता हूँ, मैं इस कल्चर को ही खत्म करना चाहता हूँ। अगर आपने मर्सिडीज कार ली है तो उसको मर्सिडीज जैसा चलाना चाहिए, लूना जैसा नहीं चलाना चाहिए। तो जूम है ना मर्सिडीज है, उसको लूना जैसे, ऑडियो जैसे यूज करते लोग, तो बड़ा अजीब लगता है वो। मतलब पहले के जमाने में होता था ना, पहले के जमाने में लोग मोबाइल आ गया तो भी लैंडलाइन जैसी बात करते थे, हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है। तो अभी जूम आ गया तो भी लोग मोबाइल जैसे बातें करते हैं, मतलब ऑडियो कॉल करते हैं। जबकि ये डिजाइन किया गया है जूम, ताकि आप एक दूसरे को एक्सपीरियंस कर सके, एक दूसरे से नजदीक आ सके, एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। तो इसको हम लोगों को एक्चुअली एक्सपीरियंशियल लेवल पे लेकर जाना। तो मैं अभी बिना वक्त जाया किए मैं आप लोगों के साथ क्रिएट करना चाहता हूँ। पेरेंटिंग ये बहुत बड़ा लोगों को चैलेंज भी लगता है, और पेरेंटिंग ये सबसे बेहतरीन चीज भी लगती है। इट्स अ प्रिविलेज। हम बोलते हैं दो तरीके के पेरेंटिंग होती है। एक पेरेंटिंग होती है जहां पे एक्चुअली आप बच्चों को नर्चर करते हो। एक पेरेंटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पॉइजनस पेरेंटिंग। क्या कहते हैं उसको? पॉइजनस पेरेंटिंग। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा पॉइजनस पेरेंटिंग के बारे में। आप लोग जानना चाहते हो पॉइजनस पेरेंटिंग क्या होता है? यस, अगर आप इजाजत दे तो मैं क्रिएट करता हूँ। एक बहुत ही बड़े ऑथर है लंदन में, जो साइकोलॉजी से डील करते हैं, और उन्होंने साइकेट्रिस्ट का बहुत बड़ा काम किया है। मेरी सिस्टर लंदन यूनिवर्सिटी में थी, तो उसने ये डॉक्यूमेंट मेरे साथ शेयर किया था। उस दिन से मेरे लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया मेरे पेरेंटिंग के अंदर, और मैंने साइकेट्रिस्ट व्यू से देखना स्टार्ट किया। तो भावना ऐसा पता चला कि 40% बच्चों में सुसाइड टेंडेंसी डेवलप हो रही है।
कितने बच्चों में? 40%। अभी कहा जाता है शिवाली, आने वाले 10 साल के बाद इट विल बी 60%। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइड का परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन उनमें वो थॉट आता है। जब वो थॉट क्रॉस हो जाता है एक मोमेंट पे, तो वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और वो सुसाइड होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक ऐसी चीज है यार, ये सबके सामने आ जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से कि पेरेंटिंग की चैलेंजेस क्या क्या है? आपके चैलेंजेस क्या है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? आप खुलकर बताएं, और जितने ज्यादा लोग बताएंगे उतना मुझे क्लैरिटी होगा कि मुझे आपको किस डायरेक्शन में ट्रेन करना है। बताइए क्या क्या चैलेंजेस है पेरेंटिंग के? ओके, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। राइट, ओके, वेरी गुड। और क्या चैलेंजेस? Motivating all the time. राइट, ओके। और क्या चैलेंजेस है? हमारी बात नहीं सुनते हैं। बात नहीं सुनते हैं, ओके, वेरी गुड। ऑटो पायलट पे कैसे चले? ऑटो पायलट पे मतलब आप थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? मतलब मैं समझ नहीं पाया। बैटरी खुद की चार्ज होनी चाहिए, बार बार चार्ज नहीं करनी चाहिए। दैट हाउ दैट मैक्सिमाइज कैसे करे पोटेंशियल, क्योंकि खुद से ही रहा। मतलब बच्चों खुद मोटिवेटेड रहे, ऐसा कह रहे हो? यस यस यस। ओके ओके ओके। और क्या चैलेंजेस है? जंक फूड। जंक फूड, वेरी गुड, ये बहुत ही बेहतरीन चैलेंज बताया आपने। और क्या है? Major time is wasted in maybe mobile or TV या फिर गेम मोबाइल और टीवी, राइट, ओके, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, गुड, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो। एंगर इश्यूज भी। Yes. Another thing that I would like to say is there is too much of everything available. So there is absolutely no chance for them to understand biggest challenge I feel to them. वेरी गुड, क्लासिक, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा है। ओके Nilesh, my son is a special child. I mean, he is autistic and he is non-verbal. So the challenge that I get is that, you know, I have difficulty to experience what he is going through. क्लासिक, थैंक यू सुबोध फॉर शेयरिंग। और क्या चैलेंजेस है? Children compare themselves to others and compare parents also to other parents. Right, okay, very good. मेरा competition बहुत क्या है, mainly to understand teens nowadays is becoming very difficult. Okay, okay. अगर मैं कुछ शेयरिंग नहीं करते एक दूसरे एक सर रेगुलरिटी नहीं रह पाती ये इनकी। हम जो बच्चों को देते हैं वो चीजें भाई हम कहते हैं बेटा आप ऐसे ऐसे रोज किया करो, 2-4 दिन फॉलो करवाते हैं, बाद में करवा नहीं पाते। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो सिटी वाले लोग शायद कम फील करते हैं, लेकिन हम टिपिकल रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं, तो वहां पर ये फील कर रहे हैं कि बच्चे प्री मैच्योर हो रहे हैं, यानी जो मैच्योरिटी का लेवल आपने और हमने 20 साल की अवस्था में था वो इन 14-15 साल की अवस्था में आ रहा है। एक ये भी टैलेंट है जो शायद आप सिटी वालों को महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमें रूरल एरिया में काफी महसूस होता है। और क्या चैलेंजेस है? मेरा एक चैलेंज ये है कि बहुत कुछ है करने के लिए और क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है लाइफ में। तो मैं खुद बहुत स्ट्रगल करती हूँ, तो मैं देखती हूँ मेरा बेटा भी बहुत स्ट्रगल करता है इसमें। और वो एक बस ऐसा हो गया, एक होमवर्क मिला है, एग्जाम है, ठीक है पढ़ लो, बट मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग रन पे क्लैरिटी नहीं है। ओके ओके। और कोई चैलेंजेस? चॉइसेस इतने हो गए हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो आप लोगों के बहुत अलग अलग चैलेंजेस होंगे, और आप लोगों ने जितने भी चैलेंजेस बताए वो वैलिड चैलेंजेस हैं। मतलब अगर देखा जाए तो फिर भी लोग बहुत कम बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो
ये चैलेंजेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई बहन है तो बहुत झगड़ा होता है, मतलब एक दूसरे से बहुत लड़ाई होती है। कुछ बच्चे अकेला रहना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे इतने अपसेट हो जाते हैं कि उनको बहुत एम्पावर करना पड़ता है। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स का कंपैरिजन दूसरे पेरेंट्स से करते हैं, देखो उनके पेरेंट्स है ना कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना कुछ देते, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं, नहीं नहीं मेरे माँ बाप से दोस्त लोग इम्पोर्टेंट हैं। कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं कि हमारे बच्चे आजकल सुनते ही नहीं है। कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं कि अभी स्टडी का टाइम है और उन लोगों का ध्यान ही नहीं है। एक चैलेंज आप लोगों ने बताया जैसे खाने पीने का ध्यान नहीं होता है, जंक फूड का इश्यू आ रहा है। कुछ चैलेंजेस अभी एक नया आया है यंग जनरेशन में कि वो रात को बहुत देर तक जागते हैं और सवेरे 9 बजे 11 बजे 12 बजे वो लोग उठते हैं। और जिन लोगों को 5 बजे उठने की आदत होती है ना, वो लोगों के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। उनके लिए ऐसा होता है ये क्या कर रहे हैं, ये कैसी लाइफ जी रहे हैं। आप में से कितने लोग मैं जो बता रहा हूँ या आपने जितने बताया चैलेंज, इस बात से एग्री करते हो कि अभी ये नए चैलेंजेस हो गए हैं? Yes, we do agree. राइट अगर आप ये देखोगे तो अभी इस चैलेंजेस के बीच में हम कैसे इंसान बनते जा रहे हैं? आपको क्या लगता है हम कैसे इंसान बनते हैं? जैसे ये चैलेंजेस आते हैं सामने, हम कैसे किस तरह के इंसान बनते जा रहे हैं? मॉनिटर ओके, मॉनिटर, ओके, CID, we become CID. राइट, ओके। अब जल्दी जल्दी बताइए, मतलब फ्रस्ट्रेटेड, ओके। वी ऑल्सो कंपेयर, वेरी गुड, ओके। We are totally disappointed and resigned. Disappointed and resigned, right, okay. फ्रस्ट्रेटेड Frustrated, ना weak हम mind, लोग ना हम लोग अपना रूटीन कर सकते हैं ना वो अपना रूटीन कर सकते हैं। right, लेकिन Sometimes aggressive. sometimes aggressive। आप में से किसी को गुस्सा आता है या नहीं आता है? Yeah. कोई बोल ही नहीं रहा है। आता पहले है। बहुत ही एक जमाने में हम लव बर्ड थे और आजकल हम 100% है। एक जमाने में हम लव बर्ड हुआ करते थे, अभी आजकल एंग्री बर्ड बोल के जाने जाते हैं हम लोग, राइट। मतलब कोई कुछ भी बात करे हम प्यार से बात करते थे, आजकल कोई भी बात करे तो हमें पहले क्वेश्चन मार्क आ जाता है, राइट। और मतलब अगर आप देखोगे समटाइम्स फेड अप आल्सो, राइट। अगर इन सबको इकट्ठा कर लो तो आप कैसे इंसान बनते जा रहे हो? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर राइट नाउ? Getting more confused. Right, getting more confused and expecting कि बच्चे बहुत क्लैरिटी में रहे। ओके, और कैसे बनते जा रहे हैं हम लोग? हिटलर, ओके, क्लासिक। आई थिंक बहुत वरीड होते जा रहे हैं फ्यूचर को वरीड, लेके। मैं सबका निचोड़ बता देता हूँ, आप एग्री करना जरूरी नहीं है, प्लीज आप प्लीज ऑफेंडेड फील मत करना, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स परेशान आत्माओं जैसा घूमते हैं। वो इतने परेशान आत्माएं हैं कि उनको देख के लोग और परेशान हो जाते हैं। Please don't call us आत्मा। और ये परेशान आत्मा का काम है सवेरे से शाम तक परेशान रहना। तो बच्चे सवेरे 6 बजे उठते हैं तो रात के 11 बजे तक उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब राजेश 6 बजे उठो, स्कूल का आजकल वीडियो पे जाना पड़ता है, फिर उसके बाद अच्छा वो पढ़ाने वाले भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग लोग नहीं रहते भाई, पूरे टीचर बिल्कुल नहीं रहते, 10 टीचर होंगे तो 2 टीचर अच्छे होते हैं। हमने भी क्यों वंदना मैडम अच्छी पढ़ाई कर ली पता है? हमारे मैडम अच्छे थे, बाकी हमारा तो पढ़ाई में कोई इरादा ही नहीं था। तो अगर आप देखोगे तो इतना कोई इंटरेस्टिंग होता नहीं है और उसके बावजूद उनको सामने बैठना पड़ता है और यस मैडम, यस सर, यस मैडम, यस सर, इतने में करते करते 2-3 बज जाते हैं। फिर उसके बाद घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, दूध पिया, खाना खाया, नाश्ता किया, फिर ट्यूशन वाले पीछे पड़ जाते हैं।
फिर रात को थोड़ा बहुत समय मिला तो दादा दादी संस्कार की बातें करते हैं। तो सवेरे 6 बजे से रात के 11 बजे तक कोई ना कोई उनको आके पका रहे हैं। उनको इंटरेस्ट आएगा वो कोई बातें नहीं हो रही है, वो सब बातें हो रही है अनीता मैडम जो उनको नहीं चाहिए। इसके बावजूद अगर आप उनकी एनर्जी देखोगे ना 11 बजे वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। इसके एग्जैक्ट अपोजिट पेरेंट्स का देखेंगे तो वो लोग 6 बजे उठेंगे तो 8 बजे चाय कॉफी के लिए आधा घंटा रेस्ट कर लेंगे, फिर खाना पकाएंगे, उसके बाद आधा पौन घंटा थोड़ा बहुत टीवी देख लेंगे। आजकल तो अनुपमा सीरियल भी बहुत पॉपुलर चल रही है और जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी रेस्ट मिल जाता है 1 आध घंटा थोड़ा बहुत। अगर आप मराठी है तो आई कुट काय करते धिंगाना करके रखा है सीरियल ने। तो अगर आप देखोगे हमारे लाइफ में तो भी थोड़ा बहुत रेस्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत रेस्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत रेस्ट है। लोग बिजी है, हम तो बोलते हैं जितने भी दुनिया में लोग बिजी हैं वो नॉन प्रोडक्टिव लोग होते हैं। हेलो, जितने भी दुनिया में लोग बिजी होते हैं दे आर मोस्ट नॉन प्रोडक्टिव पीपल। क्योंकि प्रोडक्टिव आदमी कभी बिजी नहीं हो सकता क्योंकि वो कम समय में ज्यादा काम करता है। लेकिन हम लोगों को कुछ तो भी आराम मिलता है, हमें रोकने टोकने वाले लोग कम होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस कि हमें रोकने टोकने, और अगर आप व्यापार करते हैं तो आप ही बॉस हो, फिर तो रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन इनको सवेरे 6 बजे से जो चालू हो जाता है रोकने टोकने का धंधा, इमेजिन करो हर्षदा कि आपको सवेरे 6 बजे से रात के 11 बजे तक कोई ना कोई रोक रहा है, टोक रहा है, बोल रहा है ये मत करो ये मत करो ये, और उसके बावजूद उनको इतना अच्छा बिहेव करना है और रिस्पेक्ट देना है ये रोकने टोकने वाले परेशान आत्माओं को। इमेजिन ऐसे लोगों के साथ रहना कितना कठिन होता होगा। हेलो, सर जेलर को कोई पसंद नहीं करते। आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के साथ रहना कैसा है लगता होगा बच्चों को? यही अगर बच्चों का क्लास होता ना अभी तक 20 लोग जवाब दे चुके होते। बड़ों से एक जवाब लेने में भी 10 मिनट लग जाते हैं। वो भी फ्रस्ट्रेटेड फील करते होंगे, उनको भी लगता होगा कि पता नहीं कहाँ भाग जाएं, क्यों हमारे सिर पे बैठे हुए। मेरे को तो 2 बच्चों ने बोला नीलेश जी मैं अगर 2 घर उधर पैदा होता ना तो इतना लफड़ा नहीं रहता। हेलो हेलो या हेलो यस मंजू, हम हेलो सुन रहे हैं आपका। मैंने देखा, मैं बोला ना आपको ये फर्क होता है। फोन पे भी अपन हेलो हेलो करते थे तो जूम पे भी हम हेलो हेलो करते हैं। तो आपको याद रखना है आप जूम पे हो। यस मंजू गो अहेड, वीडियो ऑन। तो अगर हम देखेंगे तो हमारी पुराने आदतें हैं। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार, मैं अकेला बोले जा रहा हूँ। अगर मुझे अकेले कोई बात करना है तो फिर मैं मेरे घर में ही बात कर लेता था। मैं आपसे आपको क्यों मिलने आया हूँ? नीलेश जी आप बोल रहे हैं ना उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, मींस यू आप आईना दिखा रहे हो। राइट, ओके, थैंक यू। राइट, ओके। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसे इंसान के साथ रहना कैसा, कितना डिफिकल्ट होता होगा। जस्ट इमेजिन अनीता, किसी लेडीज का एक ऐसा हस्बैंड है जो सवेरे 6 से 11 बजे तक टोक रहा है, सांस ऐसी है जो टोक रही है, वो लेडीज का कैसा होता है? उसको लगता है भाई मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं इस घर में नहीं रह सकती, अभी बस मेरे से सहन नहीं होता। सेम बच्चों का ऐसे ही हालत है। वो जैसे 18 साल के होते हैं ना, उनको लगता है भाई मैं इस घर में तो नहीं रह सकती। वो सिर्फ 18 साल होने की राह देख रहे हैं। फिर उनको लगता है अभी मैं पहले यूएस जाऊंगा, मेरा जैसे एजुकेशन खत्म होगा मैं यूएस जाऊंगा, मुझे आजादी चाहिए। अभी आप बोलते हो इतना ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया, और राजेश कांवड़े जी वो स्कूल वाले बच्चे बोलते हैं मेरे 7,000 इंस्टाग्राम के फॉलोअर हैं, मेरे फेसबुक पे 12,000 फॉलोअर हैं। आप बोलते हैं इंस्टाग्राम इंस्टॉल ही क्यों किया? उसको लगता है
बाप रे, बाहर की दुनिया कहाँ के कहाँ चले गई, अपने बापू जहाँ के वहां रह गए। उसके 7,000 फॉलोअर है, मुझे इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल नहीं करने दे रही है। उनका उनके चैलेंजेस अलग है। उनका गुडविल कैसे बनता है, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं। उनका गुडविल कैसे बनता है, इसके कितने गर्लफ्रेंड्स हैं। आप लोगों का डर है, ओह गर्लफ्रेंड, अरे ये उम्र पढ़ाई करने की है भाई साहब। जैसे हम लोग तो रात दिन पढ़ाई करते थे, हम तो पैदाइशी पढ़ाई में थे। मतलब एमबी पाटिल सर, हम तो हमारे माता पिता का सिर्फ सुनते ही सुनते थे। मतलब उन्होंने बोला पढ़ाई करने को बैठो कि नीलेश तुरंत पढ़ाई करने को बैठ जाता था। जैसे हम तो मतलब भगवान के उतरे हुए थे, और यही अकेले नहीं सुनते। अरे देख लो आप, कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं वीडियो ऑन करो, माँ बाप भी नहीं सुनते। वीडियो ऑन कराने के लिए 15 मिनट लग गए, उसमें भी कुछ लोगों ने एहसान किया जैसा वीडियो ऑन किया। चल तू बोलता है तो करते, चल आज मेरी मजबूरी है, बच्चों के लिए सुनना पड़ रहा है देखो, नहीं तो आधे लोग तो एग्जिट भी कर गए होंगे। क्या जबरदस्ती है, नहीं करेंगे जा। अगर आपको एक इंस्ट्रक्शन से इतना गुस्सा आता है, उनको दिन भर में कितने इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, उनको कितना गुस्सा आता होगा, वो कितने परेशान होते होंगे। इतने जानलेवा हमले उन पे सवेरे से रात तक होते हैं, और आप उम्मीद करते हो कि उन्होंने रिस्पेक्ट देना चाहिए। हेलो सर, जानलेवा हमला तो ज्यादा हो गया। मैं थोड़ा सा ज्यादा ही बोलता हूँ ताकि लोग समझे। नीलेश जी ज्यादा ही बोल रहे हैं आप बच्चों की साइड से। मैं तो पूरी तरह से उनके साइड से हूँ। प्रतिशत मैं आपके साइड से हूँ ही नहीं, लेकिन मैं आपके साइड से भी हूँ। कैसे बताऊं उत्तर है, अगर मैं उनकी साइड ले रहा हूँ तो मैं आपकी साइड ले रहा हूँ ना। अगर उनका अच्छा भविष्य बन गया तो मैंने आपकी साइड ली या उनकी साइड ली। So my daughter is enjoying it. हमारे साइड से ही बात कर रहे हैं। So my अगर daughter, आप my अरे daughter is enjoying it fully, sir. अरे कभी नहीं बैठाना बेटा। ये गीतांजलि आपने इंस्ट्रक्शन देना शायद भूल गए थे कि ये प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए है। इट्स अ पेरेंटिंग सेशन, इट्स नॉट अ चिल्ड्रन सेशन। I got तो that. Oh. हाँ, कभी भी पेरेंटिंग प्रोग्राम, नाम ही पेरेंटिंग है उसका। तो अगर वो पेरेंट है आपके बच्चे तो वो बैठ सकते हैं, अगर वो पेरेंट नहीं है तो वो बैठ नहीं सकते। इट्स अ प्रोग्राम का डिजाइन सिर्फ पेरेंट्स के लिए किया गया है। तो अगर आप आसपास आपके छोटे बच्चे होंगे तो मैं प्लीज, मेरा निवेदन है कि आप उन्हें किसी और रूम में भेजिए। आप गलत काम कर रहे हो। आप जो कॉन्वर्सेशन आपके लिए डिजाइन है आप उनको सुना रहे हो, तो इट्स वेरी हार्मफुल। ये बातचीत उन्होंने नहीं सुननी चाहिए। उनकी उम्र हंसने खेलने की है, उनकी उम्र मस्ती करने की है, उनकी उम्र जो दिल में आया वो करने की है। अगर अभी से इतना कंट्रोल बिहेव करेंगे, जब शादी होती है ना, जो वाइफ आती है वो पिस्ड ऑफ हो जाती है। उसको लगता है ये आदमी खुद का डिसीजन कुछ भी नहीं ले सकता। कई सारे लेडीज बोलते हैं नीलेश जी मेरे पति को कुछ भी बोलने जाओ ना तो बोलता है मम्मी को पूछ के बताता हूँ, पप्पा को पूछ के बताता हूँ, क्योंकि बचपन से सिखाया गया उसको कि हमारे को पूछ कर करना चाहिए। अगर आप देखोगे आज 95% लोगों में डिसेबिलिटी आ चुकी है डिसीजन मेकिंग की। दे कांट टेक देयर डिसीजंस। कितना डेंजर है। हमारे एक ट्रेनर थी, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उसका नाम है शोना बर्नार्ड। उसने तो पूरा ड्राइव लिया है पूरे दुनिया में कि लोगों ने डिसीजन मेकिंग लेना चाहिए। उसने पूरा ड्राइव क्रिएट किया है। वो बोल रही है कि पूरे दुनिया में डिसीजन एबिलिटी खत्म हो गई है। आप में से कितने लोग एक्सपीरियंस करते हो कि आप बहुत बार डिसीजन लेने में बहुत डिले करते हो, बहुत देर लगाते हो, आपको बहुत सोचना पड़ता है। इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है, मैं बच्चों की और आपकी साइड नहीं लेना चाहता।
मेरा पॉइंट सिंपल है, आप उनके दुनिया से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। शलाका, मैं रिक्वेस्ट इज कि आप अभी जितने भी मैसेज जाएंगे ना, आप कोई मैसेज मत भेजो। जिनके कैमरे ऑफ है उनके कैमरे ऑफ है, मतलब हमने कई बार कम्युनिकेट किया है एंड हमें पता चल जाना चाहिए कि वो ऐसे ही रहेंगे अभी, दे विल डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, और उनके बच्चे भी वैसे ही रहेंगे जैसे वो रह रहे, जैसे वो अभी नहीं सुन रहे उनके बच्चे सेम रिप्लिकेट करते हैं। मैं सवेरे 5 बजे उठ के पढ़ाई करता हूँ तो मेरे बच्चे सवेरे 5 बजे के उठ के पढ़ाई करते हैं। मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ तो मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करते। मैं बहुत पैसे कमाता हूँ तो मेरे बच्चे पैसे कमाना सीख रहे हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ तो वो रिस्पेक्ट देना सीखते हैं। तो हम लोगों ने जब पॉइजनस पेरेंटिंग पढ़ा था तो एक चीज समझ में आई, पॉइजनस पेरेंटिंग का मतलब है जो हम चाहते हैं वैसा बच्चा हम अगर बनाने की कोशिश करें उसको पॉइजनस पेरेंटिंग कहा जाता है। पॉइजनस पेरेंटिंग मतलब हम लोगों की एक इमेज बना के रखी है हम लोगों ने, हमारा बच्चा ऐसा बनना चाहिए। आपने जो इमेज बनाई है वैसा अगर आप बच्चा बनाओगे, आई एम श्योर दैट्स मोस्ट पॉइजनस। व्हाई इट्स पॉइजनस? कि आपने जो बनाया वो बनना चाहिए, ऐसा पॉइजनस क्यों है? व्हाई? Because in this there is no freedom, there is no self-expression for the child. Right, very good. और क्या वजह है? Why it's poisonous? वो यूनिक है और उन लोग उनकी तरह ही जीना उनको चाहिए। राइट राइट, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल शलाका, किसी को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, MBBS बनाना है, कार्डियक सर्जन बनना है, और उनके बच्चे को नासा में रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, तो उसको कुछ और बनना है, लेकिन आपने एक इमेज बना के रखी हुई है। उस इमेज के तहत आप किधर ड्राइव करेंगे उन लोगों को? आपकी इमेज की तरफ ड्राइव करोगे। तो बनना कुछ और चाहते थे और बन कुछ और गए। मेरे एक बहुत ही अच्छे कोच है मनोज ओमकार बोल के, वो हर बार बोलते हैं बच्चे चांद तारे तोड़ना चाहते हैं, आखिरी में इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। एब्सोल्युटली एग्री। नया ट्रेंड आपको सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। पाटिल सर, अभी नया ट्रेंड आया है, नया यंग जनरेशन 22 साल के बच्चों का अभी नया ट्रेंड आया है। बोलते हैं हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर में 1000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। फर्स्ट ईयर, दिस इज द न्यू ट्रेंड। मैं हैरान था, मैंने जब सुना ना, तो हम लोग पूरी जिंदगी में जो 100 करोड़ करने की सोचते थे, 1000 करोड़ करने की सोचते थे, ये लोग फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस 1000 करोड़। और लास्ट ईयर इंडिया में ऐसे 8 लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया और फर्स्ट ईयर में 1000 करोड़ का बिजनेस किया। यूनिकॉर्न वाले। राइट, एग्जैक्टली। उसका क्या वर्ड है संजय जी, मैं भूल जाता हूँ हर बार। यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। सो नाउ ये ट्रेंड आ रहा है, और वो लोगों का काम करने का एकदम तरीका अलग है। मेरा पॉइंट इतना ही है कि हम लोग हमारे फॉर्मेट में अगर बच्चों को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग वो उनका जो नेचुरल टैलेंट है वो साइड में रह जाएगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है नीलेश जी यहाँ पे। गो अहेड श्वेता। जैसे अभी वीडियो ऑन करने के लिए आप फॉर्म थे, हम वेट करेंगे एंड फिर ठीक है, जिनको ऑन करना था किया, जिनको नहीं करना था नहीं किया। तो जब हम भी ऐसे फर्म हो जाते हैं, क्योंकि बात यहाँ पे थी डिसिप्लिन की, तो जब हम ऐसे फर्म हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो उनकी दुनिया से सोचो तो ये लगता है कि भाई कितना प्रेशर है, कितना रोका टोकी है, लेकिन हमको वो डिसिप्लिन दिखता है। तो वहां पे वो क्लैश है ना, ऐसी सिचुएशंस में इट बिकम्स ऑलवेज अ क्लैश। डेफिनेटली ये क्लैश तो रहने ही वाला है, प्रॉब्लम क्लैश का नहीं है। लेकिन आप डिसिप्लिन लगाते हो, आप क्या सोच के डिसिप्लिन लगाते हो, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो मैटर करता है। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट डिसिप्लिन लगाते हो, डिसिप्लिन में नहीं रहना गलत है, डिसिप्लिन में नहीं रहना गलत है, तो आप इनडायरेक्टली उनको गलत साबित कर रहे हो, जो पॉइजनस पेरेंटिंग में आता है। डिसिप्लिन में नहीं रहना ये भी अच्छा होता है, ये लोगों को पता नहीं है।
सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये कोई डिसिप्लिन में नहीं थे इसलिए इतने अच्छे क्रिकेटर बने। गलती से वो डिसिप्लिन होते थे तो मैकेनिकल इंजीनियर बन गए होते। नहीं समझा। या ये ब्रेक द रूल बोल रहे हैं आप नीलेश जी? नहीं, आई एम नॉट सेइंग द ब्रेकिंग द रूल, आई एम सेइंग कि उन्होंने उनके पैशन को फॉलो किया। उन्होंने, अगर आपका सुना होता, उन्होंने उनके माँ बाप का सुना होता तो अब भी क्लर्क होते थे एकाधिक बैंक में। थैंक गॉड उन्होंने माँ बाप की नहीं सुनी। कुछ ही बच्चे हैं दुनिया में जो माँ बाप की नहीं सुनते, वो तरक्की कर लेते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जस्ट होल्ड ऑन राजू, जस्ट मैं पूरा, ताकि सिंक हो जाए लोगों के दिमाग में। अभी ना सिंक होना स्टार्ट हुआ है सिर्फ, अभी तक मतलब पूरा हुआ नहीं है, अंदर तक गया नहीं। थैंक गॉड कुछ लोगों ने नहीं सुना। मैंने भी मेरे पिताजी की बिल्कुल नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुनी, और वही मेरा सक्सेस का राज है। और मेरे पिताजी बड़ा प्राउड फील करते थे कि मेरा नहीं सुनता है, बहुत प्राउड था उनको। बोलते मैंने भी नहीं सुना इसलिए मैं डॉक्टर बना। 1962 में ना डॉक्टर नहीं बनते थे गीतांजलि, तब है ना जो हमारे रिश्तेदार थे ना वो किराना शॉप डालते थे, ग्रोसरी शॉप डालते थे। मतलब पढ़ाई लिखाई का जमाना नहीं था, तो मेरे अंकल वगैरह, मेरे पिताजी के अंकल वगैरह बोला ये इधर नहीं जाने का, डॉक्टर विक्टर नहीं बनने का, हम शॉप डाल के देते। मेरे पिताजी ने नहीं सुना। तो जब भी मैं नहीं सुनता था ना, रात को मेरे माँ को बोलते थे ये तरक्की करेगा, ये तरक्की करेगा भाई, क्योंकि ये दिल की आवाज सुनता है, ये कुछ काम करके बताएगा, ये दुनिया में कुछ चेंज लाएगा। ये मेरे मुंह पे बहुत डांटते थे मुझे, तो सुनता नहीं है, गलत कर रहा है तू, पागल है तू, तो समझता है क्या, माँ बाप को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और 1 घंटे बाद मम्मी को जाके बोलते थे ये बराबर जा रहे हैं, इसका खून खोलता है, इसका खून ठंडा नहीं है, ये एम्बिशियस चाइल्ड है। तो आप अगर आपके चाइल्ड को एम्बिशियस को हम बोलेंगे कि ये गलत है, अरे भाई साहब जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल पे रहते हैं ना, वो लोगों को ही 5-5 करोड़ का पैकेज मिल रहा है। मेरा बेटा मतलब दीवाना था मोबाइल का, इसीलिए वो नंबर 1 है इंडिया लेवल पे, हाईएस्ट पैकेज मिला है उसको, क्योंकि उसका स्क्रीन टाइम ज्यादा था। उसने वो प्रोग्रामिंग बनाए जो कोई बना नहीं सकता। अगर उस वक्त उसको रोक दिया होता तो उसकी पढ़ाई रुक गई होती। हमें लगता है कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, माइट बी दे आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। मैंने एक बार ऐसे ही पूछा मेरे बेटे को, वो बिग बॉस देख रहा था, तो बोले यार मुझे बड़ा गुस्सा है, ये बिग बॉस क्यों देखता है यार, वो जेठालाल का सीरियल देखना चाहिए। ये क्या देख रहा है यार बिग बॉस, कितने कम कपड़ों में रहती है लड़कियां इसके अंदर, कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड क्या क्या बताते हैं इसमें, कम उम्र में ये सब चीजें सीख जाएगा। मैंने उत्तर उसको जाके पूछा, बोले ये बिग बॉस क्यों देखता है, नहीं देखना चाहिए। मैं डांटने वाला था लेकिन मैंने पूछ लिया उसको, इससे क्या सीखने को मिलता है। उसने बोला पापा इससे ये सीखने को मिलता है कि कैसे बिहेव नहीं करना चाहिए। मुझे तब समझ में आया नजर उसकी खराब नहीं थी, नजर किसकी खराब थी, उसके बाप की। मुझे कपड़े कम नजर आ रहे थे, उसको थोड़ी नजर आ रहे थे, वो तो उनके बिहेवियर को देख रहा था, कपड़े तो मैं देख रहा था। मैं अरे बाप रे, कमीना तो मैं ही निकला, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब जो माँ बाप ने अपने मतलब यंग एज में जो गलतियां की है, उनको लगता है अपने बच्चों ने नहीं करना चाहिए। अरे आपने गलतियां किस लिए, इसलिए आप इतने सक्सेसफुल हो, इसीलिए आप इतने बड़े बने हो, इसलिए आप इतने काबिल इंसान बने हो। मैंने डॉक्टर अविनाश साहब जी का प्रोग्राम किया है, वो ट्रेन करते हैं कि गलतियां कैसे करनी चाहिए, और गलतियां करने से लाइफ कैसे बेहतरीन होती जाती है,
फ्यूचर कैसे बेहतर होते जाता है। पूरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनका गलतियां करने का है। आप कभी मिल पाए उनको तो मिलना, अमरावती शहर में रहते हैं, बहुत ही यूनिक इंसान है, बहुत यूनिक इंसान है। उनके बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। मैंने जब उनको फर्स्ट टाइम मिला, मैं बोला यार अरे गलतियां करना, गूगल बोलता है, गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट पे वैल्यूज है, वैल्यूज में लिखा है हमें गलतियां करने वाले इंजीनियर चाहिए ताकि वो इनोवेशन कर सके। गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूं नहीं, सर्च कर लेना आज। बोलते हो फेल फास्ट, बराबर लिखा आपने, गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। और हमारे यहाँ लोग काय पे लगे हुए अनीता मैडम कि बच्चों की गलतियां नहीं होनी चाहिए, करियर बर्बाद हो जाएगा, ये होगा वो होगा। आप गूगल वालों को ट्रेनिंग दो वाला, थोड़ा बहुत पागल कहीं के साले गलतियां करने को मोटिवेट करते हैं। आप क्या सीख पाए मुझे बताएं, ताकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत आपके साथ आगे करना चाहता हूँ। नीलेश भाई, मुझे तो ये लगा कि जो हो रहा है वो होने दो, एंड होने दो, एंड बी ऑब्जर्विंग एंड बी एक्सेप्टिंग where you are controlling to make it happen in a different way. Yes, yes. Let them learn from their own mistakes. और हमें लग रहा है ये मिस्टेक्स है। मुझे ये लगता है कि जो आप इतनी देर की कन्वर्सेशन हुई उस हिसाब से कि बच्चे को करने तो दो, लेकिन माइन्यूटली ऑब्जर्व भी करो और सजेस्ट करो। यस। गलती से डॉक्टर कमलेश जी उन्होंने हमारा सजेशन सुन लिया तो वो हमारे जैसे ही बनेंगे। वो आए हैं दुनिया जीतने के लिए, उनको दुनिया ही जीतने दो, उनको हमारा दिल जीतने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह सर, मेरा एक जस्ट इसी के बारे में जैसे सर आपने बोला कि क्या सीखने मिला, तो बच्चे जो कर रहे करने दो, ठीक है। आई एम ऑडिबल? या यू आर कंप्लीटली ऑडिबल। तो सर मेरे कलीग हैं, तो मतलब जस्ट मैं कंपेयर नहीं कर रहा था, उनकी बच्ची का एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है फेयर सीट में। तो वो 6 क्लास के बाद, लड़की 12th के बाद, 6 से लेकर 12th तक किसी को दिखी नहीं। मतलब इतना उसने स्टडी किया, ये किया, उन्होंने इतना पुश किया उसको, मतलब बहुत बताते हैं स्टोरी। तो ऐसा सबके साथ तो पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी वैसा बने। आपका क्वेश्चन का दे रहा हूँ कि जब समझो अगर वो कंट्रोल नहीं करते, उसको 12th तक मोबाइल नहीं दिया उन्होंने, मतलब बहुत कुछ उन्होंने शेयर किया कि भाई मैंने कहा फेयर सिलेक्शन कैसे मिल गया आज के टाइम में, 1 लाख रुपए में सीट मिल गई, 4-4 लाख कोचिंग के लिए जाते हैं। तो बोलते हैं कि 6 से लेकर 12 तक मैंने मोबाइल नहीं दिया उसको, बहुत कुछ किया और उसका सिलेक्शन हुआ भी सर। तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे नहीं पता उनके बारे में, जब तक उनसे बात नहीं करूंगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ राजीव कुमार जी। मेरे सब रिश्तेदारों ने बोला कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, खेलने नहीं देना चाहिए, ये पढ़ाई का टाइम है, 10वीं 10th 12th। हमने हमारे बच्चों को बोला पढ़ाई गई भाड़ में, आप लोग खेलो कूदो। तो मेरा बच्चा 10th स्टैंडर्ड में हर रोज 3 घंटे टेबल टेनिस खेलने जाता था। जिस दिन उसका पेपर था उस दिन वो 3 घंटा टेबल टेनिस खेलने गया था, 3 hours। तो मेरे बेटी ने मुझे आके बोला कि 3 घंटे पबजी खेलता तब तो कुछ और बात होती था। 1 मिनट में पूरा बातचीत अगर शेयरिंग कर पाया तो अच्छा लगेगा, फिर आप पूरा कीजिए सर, पूरा कीजिए। तो मैं जैसे ही मैंने बोला टेबल टेनिस खेलने जाता था, तो वो मेरे बेटी ने बहुत खूबसूरत बात कही। वो सिर्फ 5th स्टैंडर्ड में थी, तो वो ये 10th में था। तो मेरी बेटी ने बोला आपको पता है पापा भैया के इतने अच्छे परसेंटेज क्यों आते हैं? तो मैंने बोला बताओ क्यों आते हैं? तो उसने बोला पापा इसलिए अच्छे परसेंटेज आते हैं कि वो खेलता है ना तो उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है। तो वो जो कंसंट्रेशन लेवल उसका बहुत बढ़ता है ना, उसके वजह से उसकी पढ़ाई है ना, जो 6 घंटे में होनी चाहिए वो 45 मिनट में होती है। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा कि एक उनकी मिनट मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ, सॉरी मैं आपको क्वेश्चन आंसर का मौका दूंगा, सिर्फ एक पूरा आपको एस्टैब्लिश कर लूं।
30 मिनट ही बचे हैं इसके लिए, मैं बोला कि थैंक यू राजू कुमार जी, याद है मुझे। लेकिन ये अगर एस्टैब्लिश नहीं हुआ ना तो सब अधूरा हो जाएगा। को एक क्वेश्चन का मौका दीजिए, बाकी आप कीजिए। राइट, सो जैसे मैंने मेरे बेटे को पूछा फिर तुझे क्या लगता है हम राइट पेरेंटिंग कर रहे हैं, उसने बोला नहीं ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है आपसे अभी भी बहुत सारी गलतियां होती है। मैंने बताया, पूछा क्या क्या गलतियां होती है, बोले कभी कभी आप टोक देते हो भैया को। देखो बोले आपने टोका उसको, कैमरा लेना था उसको, तो आपने बोला इतना 85,000 का कैमरा क्यों लिया। दादा गए, दादा ने 2 मिनट में लेकर आ गए 85,000 का कैमरा। तो बोले दादा का पेरेंटिंग बेहतर है। मैं बोला कैसे, तो बोलते हैं देखो दादा ने उसकी नीड कंप्लीट कर ली और दादा ने बोला तू क्या करेगा, तो उसने बोला कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा दादा, आपका नाम रोशन करूंगा। तो बोले उसका दादा के साथ रिलेशनशिप देखो, आप 85,000 में स्टक हो जाते हो पापा। पैसे क्या चीज है भैया के सामने। कौन सी कक्षा की लड़की ने बोला 5वीं। तो मैंने उस दिन से ठान ली मैं मेरे बच्चों से सीखूंगा, मैं उनको सिखाऊंगा नहीं। वो लोग मुझसे 1000 गुना ज्यादा अच्छी चीजें जानते हैं। लेट मी लर्न फ्रॉम देम, लेट मी क्रिएट न्यू रियलिटी फॉर देम। तो हम लोग हर महीने में हमारे बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं कि हम लोग और क्या अच्छा कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट है कि वो लोग कुछ हद तक हमारा सुनते हैं। मैं ये बिल्कुल भी दावा नहीं करता कि वो हमारा सुनते हैं, और मैं चाहता भी नहीं कि वो हमारा सुने, क्योंकि मेरे को अभी तक वो इंसिडेंस याद है। मैंने मेरे बेटे को कहा था तो औरंगाबाद में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरे बेटे ने जिद करके पुणे में एडमिशन लिया। वो पुणे में एडमिशन लिया, इसके वजह से ही उसको सबसे बेस्ट पैकेज मिला। अगर उसने गलती से मेरी बात सुन ली होती और मेरे ही शहर में उस कॉलेज में एडमिशन लिया होता, उस कॉलेज से एक भी बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्ट नहीं हुआ। आई एम फीलिंग सो प्राउड कि उस वक्त मेरे बेटे ने मेरी नहीं सुनी। और हर्षदा मेरा डर क्या था, पुणे जाएगा तो इधर उधर भटकेगा, ध्यान भटकेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। यहाँ के कॉलेज के बच्चों को हाईएस्ट सैलरी ऑफर हो रहा है 40,000 रुपए पर मंथ, 5 लाख साल का। जहां पे मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ वहां पे सबसे लोएस्ट सैलरी सिलेक्शन हुआ 36 लाख रुपीज। तो वो लोग फ्यूचर को असेस करते हैं, दे नोज कि नया फ्यूचर क्या आ रहा है। हम लोग पास्ट से बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या मैं आप लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं ताकि आप आपके बच्चों को आजादी क्रिएट कर सके, उनका फ्यूचर को ड्राइव कर सके, में सम्मिलित हो सके, उनके बातचीत को तवज्जो दे सके? मैं कुछ आपको कंट्रीब्यूट कर पाया क्या? यस 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 सर। यस यस यस। अगर नहीं कर पाया होगा तो मैं माफी चाहता हूँ। राजीव कुमार जी, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए, ताकि मैं मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने पेंडिंग रखा है आपके सवाल की वजह से। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप बता रहे थे कि बच्चे जो करना चाहें वो उसको मौका देना चाहिए, जो उनकी एम है, तो उनकी कौन सी सही जो होती है कि उनको डिसाइड करना है क्या करना है, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक एम चेंज हो जाते हैं, किसी किसी बच्चे के, किसी का एक ही रहता है। 6 में कुछ बोलता है, 8th में कुछ बोलता है, 10th में कुछ, 12th बाद कुछ और ही करता है, वो ऐसे बोलता है। तो अभी तो मेरे बच्चे के 2 डिसीजन चेंज हो गए हैं, लेकिन मैं ऐसा ये नहीं कर रहा क्योंकि अभी 10th में, तो मेरे को मालूम है कि 10th तक तो हमको मालूम ही नहीं था कि एग्जाम कैसे होता था। वो सोच तो रहा है कम से कम, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट एज कौन सी है कि उसे क्या करना है करके, क्योंकि उसके जो कोई 2 फ्रेंड बोले मुझे ये करना है, तो कभी कभी वो बोलता है कि मुझे ये करना है। देखो ये पानी के जैसा रहता है सर, पानी को आप रोक नहीं सकते हो, तो पानी किधर भी जहां पे जगह मिलेगी वहां पे बहता है। बच्चों का डिसीजन हर महीने भी चेंज होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसने 1 महीने पहले बोला मैं ये करना चाहता हूँ, 1 महीने बाद बोला ये करना है, क्योंकि उनके पास है ना नया नया फ्यूचर आते रहता है सर, नई नई अपॉर्चुनिटी आती रहती है। हमारे वक्त है ना 5-10 साल में एक अपॉर्चुनिटी आती थी, अभी के बच्चों के पास है ना हर 3 दिन में नई अपॉर्चुनिटी आती है। तो
वो लोग है ना नए नए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं। और आपने बोला ना कौन सा सही एज होता है, सबसे सही एज होता है डिसीजन लेने का 3 साल के बाद। अगर बच्चे की उम्र 3 साल से अधिक है तो वो डिसीजन लेने के काबिल है। गलती से माँ बाप ने डिसीजन ले लिए तो वो माँ बाप जैसे बन जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी। मेरा तो कोई ड्रीम नहीं है मेरे जैसे ही बच्चा बने। मेरा तो ड्रीम है कि वो दुनिया जीते। मेरे को कोई भी शौक नहीं है कि वो मेरे जैसा बने। मतलब मेरे में कोई खराबी नहीं है, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, मैं कोई कमीना नहीं हूँ, कोई घटिया इंसान नहीं हूँ। मैं अच्छा भला खासा एक ही धर्म पत्नी के साथ 25 साल से रह रहा हूँ, तो मेरे में पेशेंस भी है, अच्छा आदमी भी हूँ। लेकिन मेरा बेटा और भी ज्यादा एम्बिशियस है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। फॉर मी इट्स लाइक इट्स अ गुड थिंग ना कि दे कैन टेक द डिसीजन। फिर जो अच्छा होगा वो भी उनका है, जो बुरा होगा वो भी उनका है। अदरवाइज बुरा हुआ तो उनको और नए नए कोर्सेस में भेजना पड़ता है ताकि वो जाके राजकमल जी रैकेट फ्री हो सके। तो बेहतर है कि वो लोग, जो बुरा होगा वो उनकी मर्जी से होगा, अच्छा होगा तो उनकी मर्जी से होगा। कोई गलत बात है ही नहीं, और बुरा किसी के साथ होता ही नहीं। एक्चुअली बुरा हो रहा है ये हमारी सोच है। हमारे कॉलेज में जितने भी मतलब आवली बच्चे थे, पढ़ाई नहीं करते थे, वही सब लोग आजकल नए का यूनिकॉर्न बन के बैठे हुए। और जो बहुत ही पढ़ाई करते थे उनका कुछ बेहाल है। वो अभी भी कुछ लोग सवेरे टिफिन लेके जाते हैं और 20,000 रुपए की सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग स्टडी करने से ही सक्सेस मिलता है, ये पैरामीटर तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। मेरी बेटी 12th में है, तो मुझे मेरे रिश्तेदार बोल रहे थे कि उसकी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मैं बोला मैं क्यों ध्यान दूं उसके पढ़ाई की तरफ, उसको देना है तो देगी। मुझे ध्यान ही देना है तो मैंने मेरे व्यापार पे देना चाहिए, मैंने मेरे काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर मैं मेरे काम पे अच्छा ध्यान दूंगा तो वो सीख जाएंगे कि उसने उसके काम पे कैसे ध्यान देना चाहिए। और खास बात मतलब सुबोध जी, मेरे बेटा जब 10th में था ना, तो सारे हमारे परिवार में 8 बच्चे थे, सेम 10th में 8 बच्चे। सब ने उनसे को मोबाइल नहीं दिया, उनको खेलने कूदने नहीं दिया, पढ़ाई ट्यूशन पे फोकस किया। और सबको परसेंटेज कम आए, मेरे बेटे को सबसे हाईएस्ट परसेंटेज आए। क्योंकि उन सब लोगों ने क्या किया, कंट्रोल बिहेवियर, कंट्रोल कंट्रोल। अरे भाई साहब क्यों कंट्रोल कर रहे हो? तुम्हारे को किसी ने कंट्रोल किया होता तो तुम्हारे को कैसा लगता था? Sir, can I say something? Yeah, please. Thank you. Sir, basically, apart from the studies, the basic ethics and the mannerisms, that is the basic problem what I am facing particularly. It's like the kids have disconnected themselves from, socializing because they are totally on the phone. They have, they don't realize the importance of the family or connecting with the family. That is the basic problem with me. Means उसको टोकना पड़ता है, प्लीज हम बैठे हैं, आप बैठो, साथ में बैठ के बात करो। या फिर वो लोग फोन से इतना ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं कि उन्हें बात करने का तरीका भूल गए हैं वो लोग, बेसिकली बिकॉज उनका सारा सब चीज जो है वो उनको फोन पे मिल जाता है। हम सब जने बैठे हैं, फैमिली पूरा, शी इज माय डॉटर, शी इज इन क्लास 8 right now, रूम में जाकर के, if she doesn't wants to interact with any of the person, it's not only family, it's any of the person. तो अगर हम फोन पे रहते हैं ना पूरा टाइम, तो हम बात करने का, that's what I feel is, बात बाकी ठीक है, पढ़ाई सबका अपना अपना लेवल होता है, सोचने का, पढ़ने का, सब चीज अपना अपना होता है, बट आप बेसिक एथिक्स या मैनर्स, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो उनको आना चाहिए। आपने जो कहा ना, मुझे बहुत अच्छी लगी बात, बहुत ही क्लास बात कही। इसको बोलते हैं, इसको थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, अगर आप चाहे तो। अनीता जी, अगर आप परमिशन दे तो मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊं। डेफिनेटली सर। आप एक सवाल का जवाब मुझे सारे पेरेंट्स दे दो, सारे दुनिया में जितने पेरेंट्स हैं, उनको पेरेंट्स के बजाय मोबाइल क्यों अच्छा लगता है?
एंटरटेनिंग मटेरियल उनको उसमें मिलने लग रहा है ना, राइट, खाली परफेक्ट। अगर एंटरटेनिंग मटेरियल वहां पे है, अगर आप एंटरटेन नहीं करते हो तो आपके साथ क्यों बात करें? got it. But Nilesh, we cannot match na that entertainment that is there on the mobile. Maybe. लेकिन अगर एंटरटेनिंग हो, अगर आपके साथ बात करना एनलाइटमेंट है, वाव है, तो दे विल टॉक विथ यू। अभी आपके साथ बात करना मतलब फिजूल टाइम वेस्ट है। आप 2-5 और इंस्ट्रक्शन दे दोगे और ज्ञान बांटोगे गीता का, महाभारत। एक मिनट में आप इसमें थोड़ा सा मैं रोकूंगी 1 मिनट। मैं देख रही हूँ कि ना कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि ड्राइव भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम सुन रहे हैं। इट्स नॉट वेरी सेफ फॉर देम। मैंने मैसेज भी दिया है, तो आप या तो यू कैन बी आउट ऑफ दिस सेशन, और या फिर जो आपके पार्टनर है वो देखें स्क्रीन पे। प्लीज डू नॉट लुक एट द स्क्रीन। इफ यू वांट टू हियर यू कैन, डू नॉट लुक एट द स्क्रीन, इट्स डेंजरस। थैंक यू। पॉइंट सिंपल है। अनीता जी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि अगर हम लोग एंटरटेनिंग करेंगे तो हम लोगों को वो हमसे बात करेंगे। तो मैंने मेरे बेटे को पूछा था अनीता जी फर्स्ट ईयर में कि तू, हम कॉलेज में छोड़ने गए उसको, तो मैं बोला तू क्या करेगा अभी यहाँ पे? तो बोला पढ़ाई करूंगा। मतलब पागल है, पुणे में जाके पढ़ाई करेगा? ये आप फर्गुसन कॉलेज पे इतनी खूबसूरत लड़कियां रहती है, यहाँ पे शाम को आया कर। तो उसको लगा अरे अपना बापू अपनी बात समझता है। अब मैं बोलूंगा मैनर्स में रहो, एथिक्स में रहो, ये रहो, वो रहो, अरे कौन सुनता है भाई साहब? ये उम्र एथिक्स मैनर्स की नहीं होती है, ये उम्र मस्ती की होती है। मेरे बच्चे प्लेन में बहुत मस्ती कर रहे थे अनीता, बहुत। तो मेरी मिसेस इतनी अपसेट थी, क्या बोलेंगे लोग, कैसे पेरेंट्स है, कैसे हमने माय वाइफ वाज लाइक शी वाज लाइक अभी पता नहीं हमारी पूरी इज्जत चली गई, पूरा कैसे बात कर रहे हैं लोग, किसके पास भी जाते हैं। हम जैसे प्लेन से उतरे सब पेरेंट्स ने हमें घेर लिया। आपके बच्चे इतने एक्टिव कैसे? हमारे बच्चों को कराने के लिए कुछ बताओ। हम पूरा 45 मिनट परेशान कि ये एक्टिव क्यों है, चुपचाप बैठना चाहिए। प्लेन में तो डिसिप्लिन में बैठना चाहिए, ये कोई ट्रेन है? इज्जत जाती है 4 लोगों में। सारे पेरेंट्स, मतलब हर्षदा, मुझे अभी भी वो इंसिडेंस याद है विशाखापट्टनम का, विजाक का। करीब 25 लोग हमारे आसपास खड़े हो गए थे। आप इनको क्या देते हो? ये किससे भी जाके बातें करते हैं, इनको कोई डर नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं आती। माय वाइफ वाज सो हैप्पी, ओ बाय गॉड बच गए, अपनी इज्जत बच गई। इन्होंने तो इज्जत बढ़ा दी अपनी। मैं शाहरुख खान के बेटे के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, तो मैं ऐसा कोई कमेंट ही नहीं कर सकता वो सही है गलत है। मैं कैसे बताऊं? वो तो सिर्फ शाहरुख का बेटा ही बता पाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू, अगर जैसे क्लासेस चल रहे हैं, अभी तो सारा ऑनलाइन हो रहा है, क्लासेस चलने लग रहे हैं, स्क्रीन पे सिर्फ टीचर का फोटो दिखने लग रहा है, बाकी साइड में गेम खेलने लग रहे हैं, या उनका फेसबुक चल रहा है, या उनका इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी चलने लग रहा है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू से? इज इट ओके? मैं सबसे पहले उस स्कूल से मेरे बच्चों को बाहर कर दूंगा। व्हाट फॉर? क्योंकि वो टीचर इतना बोरिंग पढ़ाते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ने ही नहीं चाहते। मैं मेरे बच्चों को क्यों ब्लेम करूं? इतना बेवकूफ हूं कि वो टीचर की वजह से मेरे बच्चों की लाइफ खराब करूं और मेरे रिलेशनशिप खराब। सही बोला सर। मेरा दिमाग खराब हो गया है, वो बोरिंग टीचर के चक्कर में मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दूं। अरे सोते ही बच्चे, आप सही बोल रहे हो केजी क्लास, मेरे बच्चे सोते हैं। मेरी बेटी ने बुला के बोला एक बार, पापा देखो ये टीचर, आप खुद बैठो। बोलती है मेरे को 5 मिनट आप बैठो यहाँ पे और आप ये क्लास अटेंड करके बताओ। आप 1 घंटा ये क्लास अटेंड करके बताओ। मैं लिटरली फर्स्ट टाइम शालिनी जी, मैं उस क्लास में 20 मिनट बैठा और मैंने कहा
मतलब मैंने पैर पड़नी चाहिए मेरे बेटी को, ऐसे टीचर की वो 2 साल से क्लासेस कर रही है। भगवान मालिक है सही में, मतलब इनकी जो सहन शक्ति है ना बच्चों की, ये इमेजिन के बाहर है। मैं समझता था सिर्फ हस्बैंड की सहन शक्ति होती है वाइफ को डील करते करते, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। हम तो बहुत ही आंटू पांडू है। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन। बहुत मजाक चलता है, हर बार सीरियस रहना जरूरी नहीं सहन है। शक्तियों में लेडीज का कोई वो नहीं है। अरे आप फैक्ट चेक करो मीनाक्षी, Very good, अभी मीनाक्षी। पता है आपको सारी दुनिया में जितने अत्याचार लेडीज पे हो रहे हैं ना, उससे ज्यादा अत्याचार जेंट्स पे हो रहे हैं। आप अगर आप फैक्ट चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्राइम रेट में। अग्री। और वो बोल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते बेचारा, क्योंकि उसको मर्द बोला है तो बेचारा सहन करता है। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता बेचारा। आपको नहीं पता हमारी तकलीफ है। नीलेश जी, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि अपने पास टाइम ज्यादा नहीं है। तो ये एक पॉइंट में मैं ऐसे पहुंच चुकी हूँ कि मतलब मैं अपने बेटे को मतलब काफी टाइम दिया है बचपन से, तो वो अब पहले नहीं पढ़ना चाहता था, अब उसका रहता है आप ही पढ़ाओ, आप ही पढ़ाओ। और मैं अब मतलब हम एक जगह बैठ के पढ़ते नहीं, हम घर में घूम के पढ़ते हैं, हम बाहर जाके पढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं ऐसे, तो उसे मजा आता है। अब मैंने भी बहुत बच्चे पे ध्यान दिया, जॉब पकड़ा है, तो मेरा हमेशा एक, अब वो 10th में आ गया है, ऐसी कश्मकश हो गई है लाइफ में, या फिर से अब जॉब छोड़ूं, क्योंकि अब वो टाइम मांगने लग गया मेरे से। तो मैं हमेशा एक ऐसे डिलेमा में रहती हूँ। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आई मीन जो मैं हमेशा चाहती थी वो मुझसे टाइम आपको मांग रही है। थोड़ा थोड़ा हैंड ओवर करना पड़ेगा, मतलब एक साथ नहीं आप बात को झटक पाएंगे। लेकिन एक चीज, अच्छा सवाल पूछा आपने इसलिए मैं बता देता हूँ, कभी भी बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए श्वेता मैडम। जो माँ बाप ज्यादा टाइम देते हैं ना बच्चों को, वो बच्चे एग्जैक्टली माँ बाप के जैसे बन जाते हैं, मिरर इमेज बनते हैं। जो माँ बाप चाहिए बच्चों के साथ, जो माँ बाप बहुत कम समय देते हैं ना, वो बच्चे बहुत फ्लरिश होते हैं, बहुत फ्लरिश होते हैं। कभी भी बहुत ज्यादा समय, मैं मेरे बच्चों को मुश्किल से हफ्ते में 5-10 मिनट दे पाता हूँ। I'm so proud about it. I'm so proud about it. बिल्कुल भी समय ज्यादा देना नहीं चाहिए। तो वो ग्रैपल करेंगे, अपने आप सीखेंगे। हम करेंगे तो हमारी उंगली पकड़ेंगे। एक बार सर, वो हमारी तो हो गया, अब आगे के लिए मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे। मतलब अगर आप 3 घंटा देते हो तो कल आप 2 घंटा 50 मिनट दो, फिर 7 दिन बाद 2 घंटा 40 मिनट करो। आपको थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। आप एकदम ड्रास्टिकली खत्म कर दोगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी देता हूँ श्वेता मैडम, सबसे अच्छी, आप मानो या ना मानो। मेरा एक बहुत ही बेहतरीन इंसान से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बोला था अपने बच्चों को अपसेट करना सिखाओ। आप अपसेट करो उनको बार बार। अगर वो अपसेट आप करोगे ना तो वो अभी बचपन में सीख जाएंगे। अगर आपने उनको लाड़ प्यार रखा, आपने अपसेट नहीं किया, तो जब बड़े हो जाएंगे अगर उनको किसी ने अपसेट किया तो वो मतलब झेल नहीं पाएंगे। तो बोलते हैं लड़कियों के साथ ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, पहले माँ बाप के साथ ब्रेकअप होना चाहिए। ये तो उल्टा ही हो रहा है, मतलब हम लैंडमार्क में इतना कंप्लीशन करते हैं, तो ये इनकम्प्लीशन क्रिएट नहीं करेगा? नहीं, लैंडमार्क में भी यही सिखाया जाता है। वहां पे ऐसा नहीं सिखाया जाता है कि कंप्लीशन के नाम पे आप ज्यादा टाइम दो, ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। मैंने कम से कम 35 बार फोरम किया है और मैं सुनता भी बहुत अच्छा हूँ। नहीं, और फिर फोरम मैं में ये एक्शन, अपसेट का समझ नहीं पाई। आप जब एक्चुअली अपसेट करते हो लोगों को, आप ट्रेन करते हो कि हाउ टू डील विद द अपसेट। तो इट्स लाइक अगर आप डॉक्टर अविनाश साहू जी का प्रोग्राम करेंगे ना, तो वहां पे मर्सिडीज में उतर के बच्चे आते हैं, बहुत अमीर घर के बच्चे आते हैं, तो उनको अपसेट करते हैं। दोपहर के 12 बजे बोलते हैं धूप में कि 1-1 रुपए के पेन बेच के आओ। तो वो उनको कड़ी धूप में बेचते हैं ताकि वो लोग 1 रुपए का इंपॉर्टेंस समझे। बच्चा मर्सिडीज में आया हुआ रहता है वहां पे ट्रेनिंग में।
देयर इज नो राइट वे टू ट्रेन एनीबॉडी, देयर इज नो राइट वे। जो आप कर रहे हो वही बेहतरीन है। आप सब लोग इस सेशन में आए हो, ये कोइंसिडेंस नहीं है, आपका कमिटमेंट है। बहुत लोगों को इनवाइट किया होगा इन लोगों ने, हजारों लोगों को इनवाइट किया होगा, सिर्फ 10-20 लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं। सिर्फ कमिटेड लोग इस प्रोग्राम तक पहुंचते हैं। नॉन कमिटेड लोग तो अभी तक चले भी गए होंगे कुछ काम करने के लिए, और कुछ लोग पेपर पढ़ रहे होंगे अभी, कुछ लोग टीवी देख रहे होंगे, और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये प्लान टू विन हर वीक क्यों ऑर्गेनाइज करता है ऐसा प्रोग्राम, ये क्या है यार, ये दिमाग मतलब कुछ भी, इतने जूम कॉल कौन अटेंड करेगा, और ये 1.5 घंटे का कॉल रखा है इन लोगों ने। तो वो लोग अलग हैं, लेकिन आप लोग हो जो बहुत कमिटेड हो। कमिटेड लोग ही ऐसे प्रोग्राम तक पहुंचते हैं। डू यू एग्री विथ मी, डिसएग्री विथ मी? अगर आपका कमिटमेंट नहीं होता तो आप इस कॉल पे आते थे क्या? नो सर, नॉट एट ऑल। आपका बहुत बड़ा कमिटमेंट है। मैं आपको इनवैलिडेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको गलत साबित नहीं करना चाहता, मैं आपको नए पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, ताकि आप नए पर्सपेक्टिव से आपके बच्चों की तरफ देख सको। मैं आपको या उत्तर Now, Nilesh, my kids are grown up, and according to what you say, today is the second time I'm attending your parenting session. So, according to what you said, we have done lots of mistakes, and our children are showing those mistakes. So now, how should we respond? Should we say sorry? No, never. Never. Don't say sorry. Sorry से ना बच्चों को बहुत बुरा लगता है। जब माँ बाप सॉरी बोलते हैं ना, they experience guilt immediately. Never say sorry. Just correct it. मेरा कोच है मनोज ओंकार, मैं बोला यार मेरा बिजनेस हो नहीं रहा है, तो बोलता है तो मैं अभी पैसे ट्रांसफर करने वाला हूँ क्या आपको? बोला नहीं, तो जिससे बिजनेस होगा उससे बात करना, फोन रख, करेक्ट इट। तो मैंने ऐसे कोचेस पकड़े हैं जो ना गिल्ट में जाने के लिए टाइम नहीं देते, वो बोलते हैं करेक्ट इट इमीडिएटली। अभी आपको समझ में आ गया, अब भी तुरंत करेक्ट कर लो 9:30 से। बट करेक्ट कैसे करना है वो नहीं आता है ना। हो जाएगा ना, जैसे आप उनका पर्सपेक्टिव देखना चालू करोगे। जैसे उत्तरा ने जो क्वेश्चन पूछा, मुझे भी वही, जैसे मेरे भी बच्चे बड़े हो गए, बोथ ऑफ देम आर मैरिड, एंड अब मुझे लगता है कि जब स्पेशली मेरा बेटा जब बड़ा हो रहा था, तो हम समझ नहीं पाए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो किसी से बात नहीं करता था, वो बहुत मूडी था। अब जाके पता चला है कि उसको बाइपोलर है। वो जब कब पता चला, उसकी शादी हो गई, उसके स्पाउस के साथ जब प्रॉब्लम होने लगी, तब जाके हमें पता चला कि उसको मतलब I said नहीं, divorce is not a solution. Then we saw psychologist and psychiatrist, and फिर वो अब उसको ये है कि भाई मेरा तो पूरा बचपन ही खराब निकला, मुझे तो इतना सब अपने अपने में मस्त है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। So ये एक फीलिंग अभी है मेरे अंदर कि अभी now how do I correct it and how do I build a good relationship with him? मीनाक्षी जी, मैं वही बता रहा हूँ, आप पास्ट को करेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आपकी वजह से नहीं हुआ है बाइपोलर। बाइपोलर उसकी वजह से हुआ है जिसकी वजह से हुआ है। तो उसमें मीनाक्षी का कोई उसमें रोल नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है। थैंक यू नीलेश जी, थैंक यू। तो आपको कुछ भी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, करेक्ट इट का मतलब क्या है मीनाक्षी? आज के बाद आप उनका पर्सपेक्टिव पहले सुनेंगे। आप बहुत जल्दबाजी में इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। बिल्कुल। आप लोग अपने डायरेक्शन में उनको खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे जिसको बाइपोलर डिसीज है, उसको लोग बोलते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। उनको पॉजिटिव रहो बोलने से बाइपोलर डिसीज बढ़ता है, कुछ लोगों को पता नहीं। और वो लोग बोलते रहते पॉजिटिव रहो। आजकल तो ग्रेटिट्यूड की भी इतनी किताबें पढ़ रहे, तो और भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से डिप्रेशन के पेशेंट का डिप्रेशन बढ़ता है। तो इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल नहीं देने हैं। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं देना है। इंस्ट्रक्शन हमें अच्छे नहीं लगते तो मैंने तो आज सवेरे 8:03 से 8:11 तक एक्सरसाइज क्यों किया इंस्ट्रक्शन देने का, ताकि मैं देख रहा था लोग कैसे मतलब
कैमरा भी ऑन कर रहे थे ना, तो कोई मेरे पास स्माइल नहीं दे रहा था कैमरा ऑन करके। आपने उनका भी ऐसा था, बच्चों को अपसेट कराया आज, हाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो उनके लिए ऐसा था, ये मतलब क्या जरूरत है कैमरा ऑन करने, बस सुन रही हूँ ना तुझे। तो अपने यहाँ ना सोफिस्टिकेटेड अपसेट होते लोग, मतलब बताएंगे नहीं कि हम अपसेट है, तो बट एक तो मुझे अभी गिल्ट ट्रिप पे नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं। एंड अगर जैसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है उनसे कि भाई वो मुझे फोन करके पूछे कि क्या, या मैं उनको फोन करके पूछती रहूं कि कैसे हो। तो आई जस्ट वांट टू नो नाउ एट दिस स्टेज इन लाइफ व्हाट एंड हाउ शुड, आई स्टिल वांट के रिलेशनशिप तो जो है वो सही रहना चाहिए ना। नर्चर करते रहो, पेड़ को पानी देते रहना चाहिए, पेड़ को खाद देते रहना चाहिए, वो फल कब देगा हमें नहीं पता। बिल्कुल। लेकिन आप फल की तरफ देखते बैठोगे और खाद नहीं दोगे और पानी नहीं दोगे, तो नर्चरिंग मतलब क्या है? खाद और पानी देना, फल नहीं देखना। तो इस केस में नर्चरिंग कैसे होएगी? बस एक्शन उनसे क्या होना चाहिए? आप उनसे बात करो, उनकी सुनो, अगर वो बहुत नेगेटिव बात करे तो ले लो उनकी बातचीत को। Nourish your relationship. Do not expect. और मैं तो मेरे So be a मिसेस को good listener. Be a good listener. या मैं मेरे मिसेस को बोल चुका हूँ कि बोलते हैं वो यूएस जाएगा तो हमें कॉल भी करेगा क्या? मैं बोला क्यों कॉल आना चाहिए उसका? उसका कॉल आएगा तो हम और डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमारा अभी मौज मस्ती का टाइम आया है, वो मस्ती में भी उसके कॉल आके डिस्टर्ब करेगा। उसको सिखाओ 2-4 महीने में एक आध बार कॉल किया करे, रोज कॉल न करा। अभी तो हनीमून का टाइम है, उसमें भी वो डिस्टर्ब करेंगे हमारे को। चाहिए ही नहीं हमारे को कॉल, वी डोंट वांट एनी कॉल। बोलते उसने अपनी ध्यान तो रखना चाहिए। बोले क्यों ध्यान रखना चाहिए? हम ही हमारा अच्छा ध्यान रख लेंगे लाइफ टाइम में। व्हाई दे शुड टेक केयर ऑफ अस? क्यों आप हम इतने ऐसे? इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं नीलेश जी? मतलब एक मैंने पॉइजनस पेरेंटिंग पढ़ा है इसलिए मुझे पता है ये सब ऑल पॉइजनस, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। मेरा एक खास दोस्त है, मैं सॉरी दर्शना टाइम एक्सीड कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, ये अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो। मेरा एक दोस्त है, उसके यहाँ ना श्वेता घर में बहुत सारे नौकर चाकर है, उसको अलग से रूम है, उनके यहाँ स्विमिंग टैंक है, उनके यहाँ सब कुछ है, और इसके वजह से वो डिप्रेशन का पेशेंट है। तो बोलता है मेरे पिताजी ने इतना कुछ करके रखा कि मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। वो माफ ही नहीं कर पा रहा है। सब कोर्सेस हो गए उसके, लैंडमार्क पूरा हो गया, पूरे कम्युनिकेशन कोर्स हो गए, टीम मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम हो गया, मतलब ऐसा दुनिया का कोई कोर्स नहीं है जो उसने नहीं किया होगा। सदगुरु कर लिया, आर्ट ऑफ लिविंग कर लिया, पता नहीं 40-50 कोर्सेस कर लिए, लेकिन उसका फ्रस्ट्रेशन खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी ने सब कर दिया। मैं डॉक्टर अविनाश साहू जी से ये भी सीखा कि हम लोगों ने बच्चों के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए। Let them do what they want. We will not do for them. We will not do for them. Sorry, 9:29 हो रहे हैं और 9:30 का टाइम है, और मुझे But they expect us to do for them. That is another thing. वो तो एक्सपेक्टेशन रहेंगे उनके, हमारे भी रहेंगे। थोड़ा बहुत अपसेट करते आना ही चाहिए आपको, थोड़ी बहुत। जैसे मैंने सवेरे सवेरे लोगों को अपसेट किया ना, तो लोगों की जिंदगी बन गई। कुछ लोगों के वीडियो ऑन हो गए, वो वीडियो ऑन करना सीख गए आज, उसकी वजह से बातचीत कर पाए। अगर वो वीडियो ऑन नहीं करते तो बातचीत भी नहीं करते थे, और खाना पकाते थे, नाश्ता करते थे, लेकिन मेरी बातचीत आती थी और चल जाती थी, उनके लाइफ में कोई अंतर नहीं आता था। थैंक यू नीलेश जी। पॉइजनस पेरेंटिंग कहाँ से पढ़ना है? मैं दर्शना फाड़के जी को नोट्स भेज देता हूँ, वो आप लोगों को प्लान टू विन के ग्रुप में भेज देंगे, आप पढ़ लेना। मेरे पास थोड़े बहुत नोट्स हैं, किताब तो नहीं है, तो मैं भेज देता हूँ अगर आप चाहे तो। नहीं, मुझे पढ़ना है सर। बिल्कुल पढ़ो। पढ़ने के बाद सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, 2-4 दिन नींद नहीं आती है, क्योंकि आपने आपने अभी इतना कंफ्यूज कर दिया है गोइंग ऑन इन हेड। बाय द वे, क्रिएटिविटी का फर्स्ट स्टेप कंफ्यूजन है।
अगर आपको आपकी क्रिएटिविटी जागृत करनी है तो पहले कंफ्यूज होना जरूरी है। जो लोग कंफ्यूज नहीं है, क्लियर नहीं है, वो बहुत डेंजर जोन में है, वो बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो क्लियर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। तो मेरा काम ही है मतलब हाईएस्ट लेवल का कंफ्यूजन क्रिएट करे ताकि लोग क्रिएटिव हो, ताकि लोग इनोवेटिव हो। देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, इसलिए इतने इनोवेटिव होते हैं, इसलिए इतने एनर्जेटिक होते हैं। माँ बाप बहुत क्लियर होते हैं, इसलिए जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है बस, 1 मिनट में हो जाएगा। क्या आप जंक फूड के बारे में क्या चाहेंगे? मतलब उनको जंक फूड ही खाना है और ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा मुझे लगता है जंक फूड और फूड कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब आपके भाव कैसे है उसके ऊपर सब खेल है। मेरी सिस्टर लंदन गई थी, राजू कुमार जी, उसने कभी जंक फूड नहीं खाया। लंदन में उसको 7 साल जंक फूड खाना पड़ा, और वो हमारे घर पे रोज अच्छा फूड खा के बीमार रहती थी, वहां पे वो बहुत तंदुरुस्त रही 7 साल। लवली। तो मैं टोटली कंफ्यूज हूँ किसको जंक फूड बोलना चाहिए। तो रोटी पसंद ही नहीं, तो रोज पिज्जा और खिलाऊं क्या उसको मैं? आप बोलेंगे मैं नहीं खिलाना बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई सजेशन नहीं देना चाहता, वो आपकी चॉइस है। लेकिन नहीं, अगर उसको मतलब रोज नहीं तो अल्टरनेट तो उसको चाहिए ही, लेकिन हम लोग हफ्ते में महीने में एक बार देते हैं। लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि हफ्ते में दे दूं, अगर वो चाहता है तो एकदम बारीक है, थोड़ा ठीक हो जाएगा। इस बारे में नहीं कह रहा हूँ। देखो आप एंटरटेनमेंट वाले रहना तो वो रोटी भी खा लेंगे, और अगर आप एंटरटेनमेंट वाले नहीं है ना तो जंक फूड भी हमको खुश नहीं कर पाएगा। तो ये जंक फूड नहीं है, ये एक्चुअली वो और कुछ डिमांड कर रहे हैं जो हम सुन नहीं रहे। मेरा बेटा ऐसे ही एक बार मुझे गेम मांग रहा था, तो मैंने बोला तू यार इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? तो बोलते हैं आप लोग तो खेलते नहीं हो, आप लोग तो मुझे एक्नॉलेज करते नहीं हो। मैं तो अपने आप को हैप्पी रखना चाहता हूँ ना। तो फर्स्ट टाइम आई गॉट इट कि यार प्रॉब्लम कुछ अलग है, हम लोग अटक गए जंक फूड पे। आप मतलब आप सूखी रोटी खिला दो यार प्यार से, वो जंक फूड जैसा लगेगा उनको, वो पिज्जा है उनके लिए। आपका प्यार मैटर करता है, आपका दिल कितना है वो मैटर करता है। और आप पिज्जा भी खिला दोगे ना 500 रुपए का, और आपके मुंह पे गुस्सा है, तो पिज्जा भी हजम नहीं होगा। मैं रुकता नहीं हूँ दर्शना, मुझे आपको जबरदस्ती रोकना चाहिए गीतांजलि, मैं माफी। आज आपका सेशन 1.5 आवर्स का था, पर वो भी मेरे ख्याल से लाइफ लॉन्ग टॉपिक ही है, तो कुछ ना कुछ अच्छा इस पे हम और बात करेंगे। नेक्स्ट राउंड में पेरेंटिंग का लेकर के जरूर आएंगे। पॉइजनस पेरेंटिंग का सेशन रखेंगे हम लोग एक बार, अगर आप इन सभी लोगों को बुला लेना तब, तो मैं आप सब लोगों को इनविटेशन दे दूंगा। आपको जब भी लगे, उससे बेहतर होगा, काम खराब नहीं होगा, उससे पॉइजन लेना बंद कर देंगे लोग। थैंक यू वेरी मच। बट आज आपने जो इंसाइट्स दिए वो बहुत ही गजब के थे, और वो एक्चुअली में कंफ्यूजन्स और क्रिएट कर रहे हैं, और हमें मंथन के लिए बिल्कुल मजबूर कर रहे हैं कि झांको कि कर क्या रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि सपोर्ट कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो थैंक यू सो मच, एंड दर्शना आई आस्क यू टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक ओवर एंड डू अ वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो लेट मी टेल यू गाइस, मैं बताना चाहूंगी नीलेश जी अभी इमीडिएटली इसके बाद सेशन में जाएंगे 10 बजे से 8 बजे तक। ओके, 10 o'clock to 8 PM he is going to be in a session, and guys फिर भी उन्होंने कहा कि दर्शना 1 घंटा नहीं, मुझे 1.5 घंटा दो। So highly really appreciate this नीलेश जी। और जैसे आपने एग्जैक्टली कहा कि बच्चों को प्लेजर और क्या कहते हैं पावर नहीं चाहिए, उनको मीनिंग चाहिए, पर्पस चाहिए। और अगर हमारे पास मीनिंग होगी ओके तो डेफिनेटली उनके लाइफ में मीनिंग आएगी, और सब कुछ एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। सो अटेंशन दो, प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट। सो नीलेश जी बहुत सारी चीजें बोलनी है, बहुत सारी चीजें सुननी है। वी वांट टू हैव यू वन मोर टाइम, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप जैसा बंदा जो है, जिसका स्टैंड है इतना सुपर्ब कम्युनिटी के लिए, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एंड आई एम टेलिंग यू माय लाइफ हैज बिकम बल्ले बल्ले। मेरी बेटी ने कितने महीनों के बाद यस्टरडे शी एट
सब्जी रोटी एंड दाल चावल, और बहुत मजे से, बहुत प्यार से। तो सच्ची में नीलेश जी, योर प्रेजेंस इज मेकिंग दिस लाइफ ग्रेट एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज आप कुछ जल्दी से 25 मिनट्स का ब्रेक लेके आपको फिर 8 बजे तक बैठना है विद वीडियोस ऑन, आई नो दैट। एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ सिर्फ आप लोगों को, एक अच्छी गुड न्यूज है जितने 43 लोग बचे हैं कि मैं बहुत सारा असिस्ट किया है लाइफ में। मैंने अभी एक फोरम लीडर हुआ करते थे फर्डी डिसूजा और मनोज ओंकार, जो ऑटो शावर थ्योरी फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। आज मेरा उन्होंने लॉन्च किया है एज ए लीड फैकल्टी, तो आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा दिन है कि मैं आज फोरम लीडर के साथ इमर्जिंग फ्यूचर नाम का प्रोग्राम लीड करने जा रहा हूँ। दिस इज माय बिगेस्ट डे ऑफ लाइफ। मैंने आज तक फोरम लीडर के साथ कभी मैंने लीड नहीं किया, मैंने अकेले नहीं किया होगा, ये किया होगा, लेकिन बीइंग विद द फोरम लीडर और उनके साथ मिलकर लीड करना मतलब ड्रीम कम्स ट्रू, ऐसा है। और आप सब लोगों को बता दो कि आप भी अगर कभी समय मिले तो इमर्जिंग फ्यूचर करना, तो आपके बच्चों का भविष्य इमर्जिंग फ्यूचर में आप मर्ज कर पाएंगे। अदरवाइज आप मतलब उसमें पैसों की मत सोचना, जितना जल्द कर सके आप कर लेना। कंपलसरी नहीं है, मैं कोई एनरोलमेंट नहीं करना चाहता, आई एम नॉट गोइंग टू एनरोल यू, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कोई नया शास्त्र आया है जो आप तक पहुंचना चाहिए। अगर आप तक ये नया शास्त्र पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बाय बाय दर्शना, थैंक यू वेरी मच। Please share the information. We will put on the share it with our group. लिंक फॉर इमर्जिंग फ्यूचर, आप मेरा दर्शना से नंबर ले लो मेरा और या गीतांजलि से, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर देना, तो जिनको इंटरेस्ट है उनको ही भेजेंगे, सबको नहीं भेजेंगे। परफेक्ट। मैं आपका नंबर मैं हमारे प्लान टू विन के ग्रुप में डालूंगी। गाइस वी हैव 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स, आप अगर किसी भी ग्रुप में नहीं है तो हमको प्लीज कांटेक्ट करिए और लिंक डाली हुई है। थैंक यू नीलेश जी, थैंक यू सेम सो मच एंड टेक केयर। मच नीलेश जी। And I thank everyone. Bye Darshana. Bye bye Nilesh. And I thank you each one of you to be here. Yeah, Nilesh ji has I think left the meeting. Please join the group. वहाँ पे हम उनका नंबर भी शेयर करेंगे। और definitely guys, every day at 8 o'clock, not every day, every Saturday at 8 o'clock we meet for extraordinary sessions and listening to extraordinary experts. So Gitanjali, over to you. And thank you all the Plan to Win super leaders. You are super leaders. And we want to thank all of you as a final bye to be so patient that आपने 1 की जगह 1.5 hours को भी मना नहीं किया and you stayed till the end. So hats off to your commitment, and we'll be back next week wherever we are with another very, very interesting perspective. So thank you. See you next week, same time. Thank you. Thank you.